Hello everyone. So today we are going to begin with complete AI syllabus. So employability skills. I'm going to be starting with employability skills. And the first chapter. So basically ये NCERT है जो आपकी follow होगी in like for according to the CBSE. ठीक है मतलब CBSE में यही follow होगी, right? So I'm going to be starting with employability skills and yeah. So we're going to be starting with this is the part A जो आपने रेफरेंस बुक्स आपने बाय करी होंगी उसमें ये पार्ट ए होता है सो मैंने स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन स्किल्स सो हम इसको बहुत छोटा रखेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विद बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है इसमें सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज हम एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स यूजिंग लैंग्वेज सो मैंने टॉकिंग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है अब मैं आपसे बात कर रही हूँ आप मेरे से बात कर रहे हो सो एक मैसेज जा रहा है एनकोडिंग हो रही है डिकोडिंग हो रही है बाय यू एंड यू आर गेटिंग अ मैसेज एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग विद फीडबैक सिंबल से भी कर सकते हैं साइन से बिहेवियर सो जेस्चर्स एंड ऑल राइट सो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो ये फोर की स्किल्स होती हैं विच आर डेवलप्ड ठीक है सो फोर की स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग LSRW remember this thing ठीक है our life is based on this principle only LSRW LS for listening speaking reading and writing all right so speaking more than one language can help a person communicate well with people around the world this is very basic ठीक है communication skills हमें चाहिए होती हैं to communicate effectively with the people and customers so यहाँ पे आप देखोगे कम्युनिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है it involves a sender who encodes and sends a message to a channel channel is basically a medium when I'm talking about channel कुछ नहीं होता मीडियम होता है so when I'm sending you a WhatsApp message so the medium is online but when I'm communicating or you know asking you a question face to face that is an offline mode and WhatsApp is an online channel तो ये होता है चैनल एंड रिसीवर होता है यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ आप रिसीव कर रहे हैं आप उसको डिकोड कर रहे हैं एंड देन यू विल गिव द फीडबैक राइट सो feedback is very important in communication as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not. We are going to move on to the session one, which is active listening कि हमें अच्छे से मैसेज को सुनना चाहिए. So effective communication involves the skills that can be utilized to send messages that are clear. मतलब एकदम सही और सटीक होने चाहिए, concise होने चाहिए, and they should be crisp as well as accuracy should be maintained. So these are the examples you can read. So supposing we are going to take an example, ठीक है कि we can take an example कि you are saying that how are you, ठीक है so we will say I am fine, but you will not ask इन रिस्पॉन्स मतलब जैसे कि किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू आपने आंसर कर दिया आई एम फाइन फिर आपने ये नहीं पूछा कि हाउ आर यू एज वेल है ना तो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती सो द सेंडर माइट थिंक दैट ही और शी माइट हैज एटीट्यूड या कुछ ठीक है सो यू गेटिंग अ पॉइंट सो यू कैन लिस्ट वेरी बेसिक एग्जांपल्स जो इसमें दे रखा है हम ये ले लेते हैं प्लीज अलाउ मी टू रीच ऑफिस at 11 a.m. on Tuesday, 11 June 2019, as I have an appointment with the dentist. He went to his manager and said, please allow me to reach late to the office on Tuesday. This, I have appointment with the dentist. So, which one do you think is a clear एक minute or reach late to the office? Yeah. So, which thing do you think that it is clear? मतलब कौन सा सेंटेंस इसमें से आपको क्लियर लग रहा है सो कंसाइज स्टेटमेंट में बी क्लियरर ठीक है तो हमें कंसाइज्ड स्टेटमेंट चाहिए होती है सो इन द फर्स्ट सेंटेंस यू मस्ट हैव नोटिस दैट द टाइम इज मेंशन्ड व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट क्लियर सी 11 a.m. is mentioned but यहाँ पे 11 जून is mentioned so getting it तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होती है तो डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट
For communication, details are highly important. For communication, right? So go through these examples. So of course this is clear, right? पढ़ के ही समझ आ रहा है. So now we're going to move on to that. It is thus important to ensure that our communication is clear, concise, and accurate. Effective communication skills help us to communicate the message correctly, precisely, and completely. And lack of communication skills can result in confusion, frustration, wasted effort, missed opportunities, etc. मतलब multiple things हो सकती हैं. So listening skill हम क्यों सुनते हैं? It is a very very effective thing. Listening skill is one of the most important skills in communication. It is important to learn, give, divide अनडिवाइडेड अटेंशन. ठीक है, मतलब कि सबको इक्वल अटेंशन मिलनी चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो. तो दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू अकर, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिटन दैट विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली, मैसेजेस जो है वो इजीली मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, राइट? सो सपोजिंग लाइक आई हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन एंड यू आर आंसरिंग मी, तो आपने मेरे क्वेश्चन सुनने से पहले ही आंसर कर दिया एंड वो भी गलत आंसर करा है, जिससे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं या इरिटेट हो जाऊं कि आप सुन ही नहीं रहे हो, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड, है ना, कि ऐसा हो. इसलिए इफेक्टिव लिसनिंग शुड बी definitely there in a particular person. Next, we are going to move on to the active listening procedure. All right. तो अब हम मूव करेंगे एक्टिव लिसनिंग पे. एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट है, ठीक है, विच comprises of both the desire to comprehend as well as offer to support empathy to the speaker. मतलब आप अच्छे से सुन रहे हो, उसी को एक्टिव लिसनिंग कहते हैं. इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम्स को समझना, कोलैबोरेट करना टू डेवलप सर्टेन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स. अब ये जो है आई कांटेक्ट होता है इसमें, ठीक है, मतलब बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिव लिसनिंग इज आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, गिविंग फीडबैक, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें कि आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं, राइट? एंड देन व्हेन यू आर स्पीकिंग विद जेस्चर्स, लाइक यू आर नोडिंग योर हेड एंड स्टफ लाइक दैट, एंड यू आर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस. जैसे कि आपका एग्जाम है तो फिर आपको किसी लेक्चर को सुनना है, आपको फोन वगैरह असाइड रखना होगा बिकॉज आप लेक्चर को सुनना चाह रहे हो, राइट? तो उससे कॉन्सेंट्रेशन बनेगी. And giving feedback. And feedback can be positive as well and negative as well. But in both the cases, one needs to be polite as well. ठीक है, मतलब ये नहीं कि rudeness आ जाएगी. It will ruin everything, right? So there are certain stages of active listening. Now, when I'm giving you a particular speech, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं स्पीच, ठीक है, आप पहले उस स्पीच को रिसीव करोगे, मतलब मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनोगे, फिर आप उसको समझोगे, ठीक है. कि मान लो स्पीच हो रही है टॉपिक पे ग्लोबल वार्मिंग पे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज आई एम टेकिंग दिस टॉपिक इन एवरी लेक्चर, बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? सो रिसीविंग इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग अटेंटिवली. तो आप अगर अच्छे से सुनोगे आपको तब पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग पे एक स्पीच हो रही है, देन यू विल रिमेम्बर, है ना, कि आज हमारे स्कूल में या कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग की स्पीच हुई है. देन यू विल इवेल्युएट कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी स्पीच देने की. देन यू विल रिस्पॉन्ड to your parents that it was a great speech about global warming and so. तो फिर यहाँ पे 3 R याद रखना कि 3 R है, एक यू है और एक ई है. बेसिकली ये याद ही रह जाता है. पहले यू आर रिसीविंग, देन यू आर अंडरस्टैंडिंग. रिसीव करने के बाद हम समझेंगे ना, एंड देन हम उसको याद रखेंगे, देन हम उसको वैल्यूएट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उससे, राइट? राइट. सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू दैट, हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं. सो देयर इज एन एक्रोनिम रिस्पेक्ट. सॉरी. तो रिस्पेक्ट में क्या है, आर से रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, ई से है आई कांटेक्ट, एंड एस से शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली द स्पीकर, एंड देन पी से पे अटेंशन एंड फोकस. बेसिकली दीज टू आर सेम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है.
एंड आर एंड ई तो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि रिमूव करो डिस्ट्रैक्शन. देन ई इज फॉर एम्पथाइजिंग विद द स्पीकर, राइट, where we feel the emotions of the speaker. C से we clarify the doubts. ठीक है, बिकॉज अगर हम सुनेंगे ही नहीं हमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो दैट विल बी इनअटेंटिवनेस, राइट. टी से ट्यून योर सेल्फ इनटू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर. ऐसे नहीं है कि स्पीकर बोल रहा है ना, बीच में एकदम क्वेश्चन पूछ रहे हो, रेज योर हैंड एंड properly ask the question, right? So let's see what are the barriers to active listening. ठीक है, मतलब barriers मतलब obstructions. ठीक है, so being preoccupied. अब जैसे मान लो कि आप के जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो कुछ आपको बोल रहे हैं, बट आप अपने गेम में इतने इनग्रॉस्ड हो कि आपने सुना नहीं कि आपने आपके पेरेंट्स ने क्या कहा. सो यू आर बीइंग प्रीऑक्यूपाइड, दैट इज नॉट एन एक्टिव लिसनिंग. ठीक है. सो how to overcome? Do not let the emotions take over your mind. Keep away your phones, digital devices, and all. Then noise, visual distractions. ये कैसे कर सकते हैं आप? Creating a conducive environment. मतलब एक normal environment which does not have any kind of distractions, जिसमें distraction ना हो, misinterpretations ना हो. Then past experiences और mindset. Past experiences are जिससे कि आप personally, मतलब जैसे अगर आप मान लो एक झूला झूल रहे थे ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, ठीक है, एंड योर पेरेंट्स टोल्ड यू कि नहीं झूलो, दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट मेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज डेंजरस, राइट, पर आप तब भी कर रहे हो. ठीक है. सो बेसिकली यू नीड टू अवॉइड डेवलपिंग बायसेस. ठीक है, ईगो अपनी साइड पे रख के हमें बायसेस को अवॉइड करना चाहिए. ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच, व्हाट, सॉरी, विद इंटरेक्टिंग विद अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट, पर्सनल फैक्टर्स कम नाउ. इन पर्सनल फैक्टर्स, अब जैसे किसी इंसान के बारे में आपने एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप बना लिया कि यार ये तो है ही ऐसा, है ना, या ये है ही ऐसी, ये होते ऐसी है, ये ऐसी है. So you're making a stereotype, it is a mindset. You're already having a mindset within that particular personality. So allow the other person to finish speaking and then respond. ठीक है, दूसरे को खत्म करने दो और उसके बाद रिस्पॉन्ड करे. पार्ट्स ऑफ स्पीच की बिल्कुल ही मतलब बच्चों वाली चीज है. ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा अल्फाबेट क्या होता है ना. सो यूजिंग कैपिटल्स, we know that all sentences begin with a capital letter, है ना. If you remember mints, mints क्या है, is a set of simple rules that help you to capitalize the words correctly. So months, I, names, titles, starting letter of the sentence. ये आता नहीं है वैसे, ठीक है, बट पढ़ लो. सो months यानी कि capitalize the first letter इन द नेम्स ऑफ ऑल मंथ, सारे महीनों में. जैसे जून है, तो जून का लेटर आप देखिए कैपिटल है. सिमिलरली आई, आई एम दिस, आई प्ले टेनिस. ठीक है, तो फिर यहाँ पे आई है. देन एन, नेम्स, नेम प्लेस एनिमल थिंग, है ना, वो सब हमें कैपिटल रखना है. ट्यूसडे, विद्या. ठीक है. टी, टाइटल्स, कैपिटलाइज द टाइटल्स, डॉक्टर शाह, मिस्टर पटेल. ठीक है, ये सब. देन एस, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंसेस, ऑफ कोर्स टी, ये भी सारे देखो कैपिटल में ही है. ठीक है. नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू द पंक्चुएशन. फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, apostrophe. When we are saying that, you can say it's, और फिर या फिर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं. डॉग्स फूड इज गिवन. तो यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई है. अपॉस्ट्रोफी इज बेसिकली व्हेन वी टेल दैट दिस इज बिलोंगिंग, है ना, टू समवन. किसका फूड, डॉग का फूड, तो फिर इज गिवन. सो ये यार ये बहुत बेसिक चीज है, आई डोंट थिंक सो ये करवाने की जरूरत है. क्वेश्चन मार्क कब आता है, क्वेश्चन पूछने में. देन वी नो नाउन, नेम प्लेस एनिमल थिंग, राइट. प्रोनाउन क्या होता है, ही शी इट दे. देन एडजेक्टिव इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट. आदि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जैसे कि लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, थिन, ऐसे. ठीक है. ब्यूटीफुल, अगली, ऑल दिस, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स. वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स. एडवर्ब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सो एडवर्ब इज दैट
यू आर राइटिंग क्विकली, तो राइटिंग इज ऑलरेडी अ वर्ब, राइट, बिकॉज इट इज एन एक्शन। एंड हम उसको भी डिस्क्राइब करें कि कैसे लिखा जा रहा है क्विकली, सो क्विकली इज एन एडवर्ब विच एड्स टू द वर्ब, ठीक है। ओके, ये बहुत बेसिक है यार, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? These are the supporting parts of speech, ठीक है। आर्टिकल्स आर बेसिकली एंड द, ठीक है, एंड कब आता है? वॉवल के साथ एंड ऑल दैट, ए ई आई ओ यू एंड दैट। कंजंक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। देखो जॉइन, ये एंड, बिकॉज, जॉइनिंग टू सेंटेंसेस हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? अंडर, ओवर, शी इज सिटिंग अंडर अ ट्री, ठीक है, ऐसे। न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, ठीक है। इंटरजेक्शंस जो होती हैं वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, है ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे वाओ, ओ नो, थैंक्स, हेल्प, ठीक है, अलास, ऑल दिस। दिस इज वेरी बेसिक यार, ठीक है। नाउ राइटिंग सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच टुगेदर एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया दैट हैज अ मीनिंग, है ना। जैसे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसका कोई मीनिंग है, ये हमने वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, कुछ भी हो सकता है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे आई हैव अ, क्या कह सकते हैं हम, बुक, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ऑफ हैरी पॉटर, ठीक है। हालांकि I've नेवर रेड हैरी पॉटर बट स्टिल। सो यहाँ पे ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। जिसके बारे में बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है। अरे प्रेडिक्टेड लिख दिया, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। एंड जो बात कर रहा होता है, जिसके बारे में होती है बात, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड जिसके बारे में हो, मतलब जैसे जिस चीज के बारे में हो रही है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। बेसिकली रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन विच वन is one which consists of two or more coordinate clauses are joined by coordinating conjunction, जैसे कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आते हैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल इज निशा सेल्स अ लैपटॉप, लेट अस सी ये इसमें क्या क्या हो क्या रहा है, ठीक है। So basically we talk about object which is the person or a thing that receives the action, ठीक है। सो निशा सेल्स अ लैपटॉप, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? निशा, ठीक है। एंड थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन सेज लैपटॉप, तो लैपटॉप में हो गया आपका व्हेन यू कॉल, क्या हो गया आपका? दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज रिसीविंग द एक्शन, ठीक है। इसमें इन्होंने और एग्जांपल्स नहीं दिए। एक कंपाउंड सेंटेंस भी होता है, ठीक है। सो लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स। इन्होंने अच्छे से दिए ही नहीं है एग्जांपल्स एंड ऑल, सो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कंपाउंड सेंटेंसेस एंड सिंपल सेंटेंसेस। सो एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कॉम्प्लेक्स का ही दे रही हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का एक सेंटेंस देखो, ही इज हैप्पी सिंस ही रिटायर्ड। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई विल एक्सप्लेन यू क्यों, ठीक है। सिंपल क्या हो गया? शी स्पीक्स लाउडली, ठीक है। एंड कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस में वी कैन से दैट शी वांट्स टू लूज वेट, ठीक है। शी वांट्स टू लूज वेट येट शी ईट्स चॉकलेट्स डेली,
थोड़ा अब समझ आया होगा आपको। देखो, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें हम बिल्कुल ही नॉर्मल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, विद सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट। कॉम्प्लेक्स में ना हम दो सेंटेंसेस का, आप कह सकते हो, मतलब रीजन होता है, मतलब एक सेंटेंस हम ऐसा लिखते हैं कि दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिक एक रीजन बन जाता है कि वो हैप्पी क्यों है, क्यों, क्योंकि वो रिटायर हो गया। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड सेंटेंस, शी वांट्स टू लूज वेट येट शी ईट्स चॉकलेट्स। तो फिर इसमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो a compound sentence is the one that contains at least two independent clauses which are linked together by a comma या फिर आप punctuation कोई भी कह सकते हो। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें एक पर्टिकुलर रीजन मिलता है विच कंटेन्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। सो दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। तो एग्जाम्पल फॉर दिस कैन बी दैट रीना gave a book to him. So when I'm talking about indirect object क्या होता है, the noun or pronoun that receives the direct object। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, बुक, दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, हिम, क्यों, क्योंकि उसको इनडायरेक्टली मिल रही है। इनडायरेक्टली जिसको जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। So this is the indirect object. Why? Because it is receiving the direct object. Is it clear? Now, see, Rima, Reena, जो भी। ठीक है। Now, we're going to move on to active and passive sentences. Active sentences is that when I'm saying I did this, ठीक है, एंड पैसिव सेंटेंस में आ जाता है दिस was done by me। तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज जाए कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस बेसिकली इन्वॉल्व्स ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पैसिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट आता है पहले प्लस वर्ब आता है एंड देन सब्जेक्ट आता है। सी, सब्जेक्ट इज मी हियर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड आई डिड दिस या फिर आई प्लेड बास्केटबॉल, तो फिर कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज, यू कैन गिव लाइक एनी एग्जाम्पल। ठीक है। सो वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। व्हाट इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस एंड इट फॉर्म्स अ पैराग्राफ। ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, तो फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है, इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन होती है। फिर क्या होता है, थीम होता है। फिर क्या होता है, कंक्लूजन होता है। थीम में आप बेसिकली या तो थीम लिखना या फिर मेन बॉडी लिखना। ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, ये कोई चीज भी नहीं लग रही है मुझे, मतलब इसे पढ़ाने की, है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, दिस इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी गोइंग टू मूव ऑन टू द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सारे के सारे डाउट्स जो भी हैं वो आप पूछ सकते हैं।